everyone. Mic testing. 1 2 3 1 2 3. Going to have some fun here right now so that everybody can join. So hang on for 5 minutes, whoever is watching this. And guys, can you hear? If you can hear, just say hi, wave at me so that I know I can go on. Hello everyone. Just hold on to 2 minutes, everybody, so that we'll begin with the right topic. Yes, thank you RTG for confirming that you can hear me. Yes, let's get started. So welcome to Brain to Body. Thank you Dishan, thank you so much. Welcome to Brain to Body Revolution, and today we are here talking about mastering family food habits through parenting styles. So हम आज हमारे parenting style पे थोड़ा ध्यान देंगे to understand how we can better it, right? So tell me if you have seen this or you are someone who does this. बच्चा आता है, गिरता है, रो रहा है, तो आप क्या करोगे? क्या आपने ऐसे देखा है कि अरे बच्चे तू गिर गए, आजा, नहीं रोते बच्चा, नहीं रोते, ऐसे नहीं करते, नहीं, अच्छे बच्चे नहीं रोते, अच्छे बच्चे नहीं रोते हैं. आप नहीं रोगे ना तो आपको चॉकलेट मिलेगा. नहीं रोना, चॉकलेट नहीं मिलेगा. वो रोना बंद कर देता है और आप उसको चॉकलेट देते हो. आप बोले तो कोई भी पेरेंट, ये हमारे सीन हमारे इर्द गिर्द बहुत होता है. दिस इज समथिंग दैट्स क्वाइट कॉमन. यही बच्चा आगे जाके जब अपने मीटिंग में फेल होता है या प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाता है या फिर वो एग्जाम में फेल हो जाता है, वो क्या करता है? पहले वो जाके आइसक्रीम का डब्बा खोलता है या चॉकलेट बार खाता है या चिप्स पैकेट. बिकॉज वही हमने सिखाया जब वो बच्चा था कि जब कुछ बुरा होता है ना तेरे साथ, तुम नहीं रोना बट खाना अच्छा वाला खाना खाना. इससे आप तेरे को अच्छा लगेगा. अच्छा उसको खाने से नहीं हुआ था, जो आपने बैठ के उसके हाथ पकड़ के आपने इसको कन्विंस किया था, कंसोल किया था, वो ढूंढ रहा है. बट हम क्या कर देते, हम चॉकलेट पे फोकस ला देते हैं. क्या कभी आपने से किसी ने बैठ के पूछा क्यों रो रहा है बच्चा? द बच्चा इज क्राइंग बिकॉज इट फील्स मिसट्रीटेड, है ना. जब वो गिर रहा है उसको नहीं पता वो क्यों गिरा. Because he was walking, he just fell down. He doesn't understand what happened. And here you are saying, oh, don't cry and eat this chocolate. Do not go into why you fell, but you have to sit and explain. होता है ऐसे, हम भी गिरते थे, हम भी उठते थे. टिकल कर दो उसको, टिकल करके उसको हंसा दो. That is way better than giving him a packet of chips or chocolate or a candy. This is a preview of what we are going to be talking today. Hi, my name is Soumya and I'm from Brain to Body Revolution, a co-founder, transformist and a nutrition strategist. Along with me is my co-founder Supriya Nehra, who is Director of Holistic Performance and Prosperity. Together today we will be talking about 5 key food habits as a parent that we partake on the kids, that we pass on to the kids, because this is something that you have picked on from your parents, and this is not to anybody's fault. We are not faulting anybody here. We are just trying to create more awareness, creating more understanding between a parent and a kid. Because remember, your kid is your future. What you give to your kid matters. It does not matter you have wealth, you have FDs, you have trust funds, you have properties, all this, it's an add-on. But what you need to give most to a kid is a lifestyle. It's a way to deal with things. Life sets, life skills is the first most thing that you should be investing your time and energy in to giving your kid. With that, we'll begin with the first food habit hack that you need to work upon. All right? The very thing that I told you, comforting the food with chocolate, with using food as a comfort food. ये आपको थोड़ा रेगुलेट करना पड़ेगा. आप एक तभी कर पाओगे जब आप अपने इमोशंस रेगुलेट कर पाओगे.
जब आप गिरोगे, जब आप फेल हो रहे हो, जब आपके लाइफ में सही नहीं चल रहा है, तो यू फर्स्ट मेक अ कॉल टू सिट विथ योर सेल्फ एंड heal yourself first. Only then you will be able to notice your child when it falls, when it fails, when it doesn't know to get up. Only then you can extend that favor back. है ना? आपको ये करना है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके पेरेंटिंग स्टाइल में. आप अपने जो पेरेंट्स ने किया आप वो मत करो, आप साइकिल ब्रेकर्स बनो. आप में ये क्षमता है. इफ यू आर हियर राइट नाउ, यू आर लिसनिंग टू दिस रील, यू आर अ साइकिल ब्रेकर. सो जो आपको कंसोलिंग के टेक्निक्स आपके पेरेंट्स ने सिखाया है वो आपको ब्रेक करना है. सो द नेक्स्ट टाइम योर किड इज फॉलिंग, फेलिंग, डजंट नो, क्राइंग अनकंट्रोलेबली, सिट विद देम, थोड़ा सा हाथ सवारो और पूछो क्या हुआ बच्चा. दे विल नॉट बी एबल टू से इट, दे डोंट नो व्हाट्स. जस्ट आस्क देम व्हाट दे आर फीलिंग इन देयर बॉडी. उनके बॉडी में क्या हो रहा है. दिल से पेट में अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे दुख रहा है. दे विल से दीज थिंग्स. व्हेन दे से दोज थिंग्स देन यू कैन से अच्छा बेटा इट्स ओके, वो थोड़ी देर में चले जाएगा, मम्मा है ना आपके साथ, पापा है ना आपके साथ, हम दोनों चलो एक वॉक पे जाके आते हैं, चलो हम एक गेम खेल लेते हैं, है ना. डू दिस इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग फूड इनटू द इक्वेशन एंड डाइवर्टिंग देयर माइंड. Okay, by this you are teaching them a very important life skill, which is if you fall down, if you fail, if you can't get up, find a way, find strength in you to do something different. With that, let's move to the second habit. Supriya, do you want to take that one? Play conscious parents. I'm sure that if you're here right now, that means you're a conscious parent. आप बिल्कुल बहुत तहे दिल से आप चाहते हो कि आप अपने बच्चे की पेरेंटिंग या उसकी ग्रूमिंग बहुत अच्छे से कर पाओ. So congratulations, you're on the path of success for both yourself and for your kid. So the first very important thing that Soumya tells is कि हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि फूड इज नॉट अ कॉम्पनसेशन फॉर देयर चोट. जो बच्चे को चोट लग गई या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गई उसके लाइफ में, किसी भी तरह का कुछ ऐसा वो था कि फूड को हम लोगों ने उसे एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज नहीं बना देना है कि इमोशंस का कॉम्प्लीमेंट्री फूड नहीं होता है ना. इमोशंस का कॉम्प्लीमेंट्री इमोशंस ही होते हैं. इफ योर चाइल्ड इज शोइंग यू एन इमोशन कि उसको रोना आ रहा है, you also show an emotion other than an adjustment, other than following a shortcut. So shortcut को follow ना करके उसको हम लोगों के उसको प्यार से इसको डील करना है. That was the first thing that Soumya told you guys, and it was actually very important for us. बचपन से हमारे साथ भी होता आ रहा है. Now, as we are conscious parent, so we got to break that habit. Now the second thing, आपको कितनी बार ऐसा हुआ है कि बचपन में कि बेटा तुमने ऐसा कर लिया तो तुमको रिवॉर्ड की तरह से ये मिलेगा, है ना. बहुत बार ऐसा होता था हमारे साथ कि जब हमने कोई अच्छा काम किया है तो सिंस यू हैव कम फर्स्ट इन योर क्लास यू विल गेट दिस रिस्ट वॉच. मेरे साथ होता था 10th स्टैंडर्ड में, मेरे से बोला जाता था. सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में भी जब मैं थे ना तो पेरेंट्स ऐसे बोलते थे कि बेटा तुम फर्स्ट आ गए ना क्लास में, इसलिए चलो तुम्हारे साथ ये है, तुम्हारे लिए ये वाला गिफ्ट आया है. गिफ्ट इज अदर थिंग. लेकिन जब आप उसको गिफ्ट को इक्वेट करने की चीज की कोशिश करते हो किसी और चीज के साथ, किसी खाने की चीज के साथ, तो बच्चे के दिमाग में वो मेमोरी सेट हो जाती है कि एवरी टाइम देयर इज अ विक्ट्री इन माय लाइफ आई हैव टू गो एंड बाय अ पैकेट, बी इट अ केक, बी इट अ पिज्जा, मे बी आई विल गो एंड सेलिब्रेट विद माय फ्रेंड्स एंड हैव दैट पिज्जा. सो वाई वी कैन ऑलवेज हैव दैट कि किसी भी चीज का कॉम्पनसेशन करने के लिए हमको फूड की वो उसकी जरूरत नहीं है. हम उसको साथ चीयर करके मे बी हम लोग और कहीं घूमने जा सकते हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए. सिर्फ और सिर्फ हमारा हाथ पैकेट की तरफ ही क्यों जाता है, हमारा ध्यान जो हमें शॉपिंग की तरफ ही अकेला क्यों जाता है कि शॉपिंग करके ही हम लोग अपने को हैप्पीनेस दिला सकते हैं. इसका खामियाजा चाहे आज आपको नजर में नहीं आए, आपको नहीं पता चलेगा कि कितना उसका खामियाजा क्या है, बट फ्यूचर में जब आप ये देखोगे कुछ भी ऐसा चीज होगा, कुछ भी ऐसी चीज होगी, बच्चा जो है मीठा खाने के लिए जाएगा. सबसे पहले कुछ भी ऐसा सिचुएशन होता है कि बच्चे की जैसे मान लो कि जॉब में प्रमोशन मिलता है, चलो कुछ मीठा हो जाए. और आपको खुद पता है आज हम लोगों की एज में हम लोग मीठा ज्यादा खाने से क्या है ना, लॉन्जेविटी हमारी डिक्रीज होती है. हम लोग लॉन्जिविटी को अपने आप ही डिक्रीज कर देते हैं जितना ज्यादा हम मीठे का इंटेक करते हैं. बट ये मीठा खाना हम लोगों को बचपन से इसकी लत लगा दी गई है, चाहे वो किसी कॉम्पनसेशन के रूप में है कि हमारी चोट लग गई तभी मीठा खा लो, चाहे किसी सेलिब्रेशन के रूप में है
राइट? क्या हम लोगों को इतनी बार रिवॉर्ड जितनी बार किया जाता था कि बेटा तुमने ये कर दिया ना, तुमने ये क्लीन कर दिया, तुमने अपना रूम क्लीन कर लिया, वाओ शाबाश, यू विल गेट 2 चॉकलेट्स टुडे। तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारे भाई से ज्यादा नंबर आ गया ना, तुमको पता है इतना बढ़िया वाला चॉकलेट मिलेगा। तो आई यूज टू ऑलवेज हैव दैट। किसी और चीज का मैं पता है टॉप करने के लिए टॉप नहीं करती थी, शायद मैं उस चॉकलेट के लिए टॉप करती थी। तो उसके बाद ऐसी आदत लगी कि लाइफ में हर बार एक्सपेक्टेशन रहने लगी कि आप काम किस लिए करते हो, उस पोजीशन को पाने के लिए नहीं, शायद उस चीज को, चॉकलेट को पाने के लिए, या कोई मीठा आपको मिलेगा उस चीज के लिए, उसी उम्मीद के साथ आप करने लग पड़ते हो उस चीज। तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से इस बात का ध्यान रखिए कि जब आपका बच्चा कोई इस तरह की चीज करे, कुछ ऐसा रिवॉर्डिंग चीज करे, तो आपको क्या करना है, उसको ध्यान से सोचना है उस बात को कि वाई, हाउ कैन यू डू दैट। आप उसको कैसे रिवॉर्ड कर सकते हो, शायद उसको एक एक्स्ट्रा उसके साथ टाइम बिताकर, शायद ये बोल के कि चलो हम लोग हॉलीडे पे जाएंगे, मतलब चेंज योर टेक्निक्स ऑल द टाइम। मे बी यू कैन रिवॉर्ड हिम विद एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स टाइम। आजकल बच्चे अपना फोन को लेके बैठे रहते हैं, उनको लगता है कि फोन कर लूं मैं या प्ले स्टेशन खेल लेता हूँ। सो यू कैन जस्ट से दैट, चलो तुम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जा रहे हो ना, तुमको आज हाफ एन आवर तुमको एक्स्ट्रा मिलेगा खेलने के लिए, है ना। मे बी यू कैन वॉच अ मूवी टुगेदर। सो बाय दिस वी कैन डू दैट। बट फूड को, खाली खाने की चीज को उसको रिवॉर्ड करने का तरीका ना अपनाए, जिसके कारण उसकी आदतें बिगड़ रही हैं। बाद में जब वो बड़ा होगा, आपकी एज में आएगा या आपसे भी छोटा, यंगस्टर्स के साथ ही ये प्रॉब्लम शुरू होने जाती है कि फॉर एवरी सेलिब्रेशन दे आर लुकिंग फॉर अ शुगर थिंग। So we do not want that. We want longevity. We want our kids to thrive and flourish. So we will stop here right now. We'll just change the mode of reward and then go on. Yeah. Soumya, can you relate with this? Definitely, 100%, and it feels bad also when you don't get that reward. Yeah, आपको पता था कि first if I'd have come first, we would go out for a lunch, for a dinner or something, and then you have gotten the less marks, and everybody in the house is treating you like you have not done enough, and that guilt is another layer on that. Ki and that Absolutely. other forces more such habits, like that. एक तो वो हो गया, बुरा फील हो रहा है, अभी बुरा फील होने पे कोई आ भी नहीं रहा है, जैसे कि आ रहे थे पहले कंफर्ट करने के लिए, अभी वो भी नहीं है। सो यू हैव लॉस्ट फिजिकल टच एज वेल एज यू हैव लॉस्ट ऑन फूड। बोथ थिंग्स आर वेरी वेरी ट्रॉमेटिक फॉर अ चाइल्ड, एंड वही बंदा आगे जाके विल डू लॉट ऑफ थिंग्स। वही हम उनको वही ब्लेम करते कि यू आर ईटिंग, यू आर जस्ट ईटिंग, कुछ भी हो खा रही है, खुशी हो तो भी खा रही है, दुख हो तो भी खा रही है, देख मोटी बन रही है, दीज आर द हाँ, दे डेरोगेटरी गेट सेंस। इनटू एक्सेस ईटिंग ऑल्सो ना, एक्सेस या ईटिंग करने की आदत उनको लग जाती है फिर कि नहीं, बिल्कुल चाहे उनका पेट भरा भी रहेगा ना, सी आफ्टर कंप्लीटिंग द होल डिनर यू स्टिल गो एंड हैव दैट पीस ऑफ डिजर्ट, राइट? इवन इफ योर टमी डजंट हैव एनी स्पेस कि लगाने की जगह है भाई, खाने की जगह नहीं है, फिर भी you'll go and have that extra piece of sugar or sweet thing. वो किस लिए है, मैंने बहुत बहुत ऑब्जर्व किया है, एंड दैट इज बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है डोंट वेस्ट फूड, जो हमारे Yeah. इंडियन कल्चर में और एशियन कल्चर्स में ज्यादा है। डोंट वेस्ट फूड। खाना बनाए तेरे लिए, मैंने 2 चपाती बना के रखा है, क्या करूं मैं उसको, सिर पे बांधू क्या? दिस वॉज माई स्टैंडर्ड डायलॉग ऑफ माई मॉम व्हेन आई सेड आई डोंट फील हंगर। एंड आई हैव सीन मेनी न्यू मॉम्स जो अपने बच्चों को घुमा घुमा के खिलाते रहते हैं। दे फीड बिकॉज दे हैव टेकन सो मच ऑफ फूड ऑन देयर प्लेट। Hmm. आई वॉन्ट टू टेल एवरीबडी कि आपका पेट, आप एज ए अडल्ट भी, इट इज जस्ट 50 ml उसकी कैपेसिटी। 50 ml इज इसके इतना ही है आपका पाउच। वो स्ट्रेच हो सकता है 5 लीटर्स तक। तो जस्ट इमेजिन अ बेबी, अ टॉडलर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर का बेबी, उसमें उसका पेट ही कितना बड़ा होगा, और आप लगे हुए हो क्योंकि यू हैव टेकन सो मच ऑफ फूड एंड यू वांट टू फीड द होल थिंग। उससे क्या हो रहा है ना, आप ये टीच कर रहे हो कि आपका बॉडी जो कर रहा है उसको इग्नोर करो, जो बाहर के लोग बोल रहे हैं उसको सुनो। So you have, because your stomach can stretch, it will stretch up to 5 liter aram se. So you have overfed. We have as a parents taught our kids to overeat like this. इग्नोर करो, भूख नहीं लग रही है खाओ बिकॉज खाना बनाया है, खाना वेस्ट हो जाएगा। अरे नहीं, वेस्ट नहीं हो रहा है भाई। आप इंडिया में तो प्रॉब्लम भी नहीं है, कुत्ते गाय भैंस सब मिल जाते हैं आपको। प्लीज पुट इट टू देम इफ इट इज अ वेस्ट।
what you can also teach your kids is take small portions. छोटे छोटे portions में दो. Start with just 1/4 of a chapati for a small baby, and for a big teenager start with 1 chapati. 2 chapati मत लो. You know वो 2 chapati खा सकता है, but give 1. Maybe someday he wants to eat 1, some days he wants to eat 1.5. इससे क्या होता है पता है, ये अगर आप ये करोगे तो आगे जाके they'll know portion control. They will not eat for the sake of eating. They'll not eat कि बना है खराब हो जाएगा इसलिए. ये बहुत सारे women करती हैं. Women as a housewife, we all pick up this as a habit कि घर पे बनाया है वेस्ट चला जाएगा मैं खा लेती हूँ. प्लीज आपके बॉडी को आप डस्टबिन की तरह ट्रीट मत करो. यू कैन रीसाइकल, कंपोस्ट पे डाल दो, कंपोस्टिंग में डाल दो जो बचा है खाना, है ना. ट्राई टू गिव दिस न्यू टेक्निक्स, न्यू टूल्स टू योर किड्स टू आइडेंटिफाई विथ हंगर. हाँ मेरा पेट बस है तो बस हो गया, छोड़ दो. डू नॉट फोर्स योर किड्स टू कंप्लीट समथिंग अंडर स्ट्रेस. ये जो आप फोर्स कर रहे हो कि खाना फिनिश करो, ये स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है उनके बॉडी में, एंड वो स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हैं. यहाँ से उत्पन्न, यहाँ से ओरिजिन हो रहा है आपका स्ट्रेस ईटिंग का हैबिट. टू पीपल आउट हियर हु हैज स्ट्रेस ईटिंग एज योर हैबिट, please go back and check your childhood. This is something that you might have done. And please, if you are a parent, if you have a kid at home, do not pass it on. Today, right now, break this cycle. Food is not a medicine. Don't treat it like that. Okay? If you want, we can go. How do you resonate with it? Is this something that happened with you, Supriya? Swamina, yes, the thing is, I can go back to history and I can show you that why do we do so. हम सभी को एंशियंट टाइम में we had to finish it off because हम लोगों के पास फ्रिज नहीं होते थे ना. हम लोगों ने सामान खाने का रखा और वो वेस्ट हो जाता था. तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पर इतना ज्यादा हम लोग फाइनेंशियली भी इतने ज्यादा वेल्दी नहीं होते थे. तो वी यूज्ड टू थिंक कि भी हम लोगों को खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि फेमाइन होगा तो खाना नहीं मिलेगा. वी यूज्ड टू कंजर्व दैट फूड. तो तब हमारे पास फूड तो होता ही नहीं था ना, फ्रिजेस नहीं होते थे. तो आर फूड विल गॉट स्टेल और उसके बाद खाने लायक नहीं बचेगा. इसलिए ये चीज तब से आ रही है हमारे ऊपर. फ्रिजेस नहीं होते तो हम अपने अंदर स्टोर कर देते थे. तो दैट टाइम इट वाज रिक्वायर्ड आल्सो. व्हाई? बिकॉज कभी फेमाइंस आ गया, कभी किस तरह का नेचुरल किस तरह का कैटास्ट्रोफी आ गया, तो उसके कारण वी यूज्ड टू स्टोर इट. इवन आवर बॉडीज लाइक दैट ना सौम्या, कि इट विल स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ फैट सो दैट इट इज यूजफुल फॉर अस लेटर ऑन. But now, guys, we are in the 21st century. We have got our fridges. If you think that there is no stray animal in the street also, just store it in the fridge, man. फ्रिज में रखो खाने को और उसको ठुसाओ मत. आप भी मत ठूसो अपने खाने को. You know every bite of food that you are forcing yourself to eat. And the same way, आपको अपने बच्चे की साइकोलॉजी को समझना चाहिए कि आप उसको समझो कि आप उसको अगर ठूसोगे ना तो उसको हमेशा ही लाइफ में ऐसा लगेगा कि उसको स्ट्रेस हो जाता है, उसको चिंता हो जाती है कि अभी मुझे ठूसा जाएगा. आई हैव अ फ्रेंड, उसका बच्चा जो है, उसकी मम्मी जब खाना खिलाते बैठेगी ना, टॉडलर है वो तभी रोना शुरू कर देता है. और फिर हम लोगों को कंप्लेन होता है कि मेरा बच्चा तो खाता नहीं है. एक तो हम ये बोल कर देते हैं मेरा बच्चा तो बिल्कुल ही खाता नहीं है, मेरा बच्चा बिल्कुल ही खाता नहीं है. हमको लगता है कि नजर लग जाएगी, बट वो नजर नहीं है. अरे नहीं, भूख जब लगती है, हाउ मेनी ऑफ यू हियर, जब आपको भूख लगती है आप नहीं खाते हो क्या? भूख ऐसा सिग्नल है बॉडी में जो आपको चुप नहीं बैठने देता है. इट इज समथिंग दैट विल मेक श्योर यू विल हैव इट. तो भले कितना भी छोटा बच्चा है, अरे यार जो अभी अभी पैदा हुआ है वो रो रो के दूध पी लेता है ना. व्हेन दैट किड विच हैज नो अदर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग कैन फीड इटसेल्फ व्हेन इट इज हंग्री, डेफिनेटली आपके बच्चे जब बोल रहे हैं कि नहीं मम्मा बस हो गया, मुझे मत दो, मुझे नहीं खाना है, रहने दो उनको, थोड़ा फास्ट करने दो, उनको भूख लगने दो. लेट देम आइडेंटिफाई विद देयर हंगर सिग्नल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनिशियल स्टेजेस में सिखाना. Very important. Yeah, very important. And another thing, Soumya, that we do is कि बच्चा, जैसे हम लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं, कहीं पर मॉल्स में जाते हैं या हॉलिडेइंग में जाते हैं, तो बच्चे को चुप करवाने के लिए उसको एक पैकेट ऑफ चिप्स पकड़ा देंगे कि नहीं बेटा, बच्चे को बिजी करने के लिए. ठीक है भाई, हस्बैंड वाइफ है, तुमने रोमांस भी करना होगा, तुमने कुछ करना होगा, तो उसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को चॉकलेट पकड़ा दो, बच्चे को चिप्स पकड़ा दो. भाई यू कैन एंगेज द चाइल्ड इन सम अदर थिंग ऑल्सो ना. तो बच्चे को ना बहाना मिल जाता है कि अभी मैं व्हाट माय ब्रदर यूज्ड टू डू लाइक दिस.
कि जब भी कोई अगर वो आता, जैसे कोई गेस्ट आता है ना हमारे घर में, कभी कोई गेस्ट आता है तो ही विल डू ऑल द न्यूसेंस। जब कोई गेस्ट आता है उसको पता है कि मम्मा अभी कुछ बोलेंगी नहीं, तो दैट टाइम ना हम लोगों को इस तरह से बिठा दिया जाता था कि हाँ अभी तो बच्चे कुछ मत, मम्मी कुछ बोलेगी नहीं, तब मैं सारे के सारे टैंट्रम्स मम्मी के सामने थ्रो करूंगा, क्योंकि गेस्ट के सामने तो मम्मी कुछ बोलेंगी नहीं। I am sure majority of you guys will, respond to it, will relate to it that yes, हम लोगों को ऐसे करके ही बचपन से हम लोगों के साथ ऐसा हुआ है। दैट इज वाई नाउ ऑल्सो वी आर लाइक दैट, कि कहीं पर कुछ हुआ है ना, यू विल हैव दिस एक्सपेक्टेशन कि बाहर जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो हमको वो गोलगप्पे खाकर ही आने हैं। बाहर शॉपिंग को अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं तो हमारे अंदर ऐसा हो जाता है कि नहीं नहीं, बाहर जाए बच्चे को आइसक्रीम खिलाकर ही लाना, चाहे वो 15 मिनट के गए हो आप बाहर, चाहे वो 1 आवर के लिए गए हो। So we are creating this kind of expectation in them, and that is why they're always throwing tantrums on us. और तब हम उनका कसूर निकालते हैं कि तुम्हारा कसूर है भाई, मेरा बच्चा तो पिज्जा के बिना मानता ही नहीं है। शुरू शुरू में हमको अच्छा लगता है। द सेम वे व्हेन द छोटा वाला बच्चा इज स्लैपिंग यू इन योर चीक, छोटा वाला बच्चा, अच्छा मारो मारो, देखा ना बच्चा कैसे मारते हो, मारो मारो। देन जब बच्चा बड़ा होता है, जब आपके ऊपर ऐसे फोर्सफुल एक्शंस करता है, तब आपको बहुत बुरा लगता है। बट अगर आपने जब वो छोटे में ही उसको समझा दिया गया होता उस बच्चे को, तो वो उस तरह से बिहेव नहीं करता। तो इसीलिए हम लोगों का चूंकि हमारा ये वाला का पूरा फोकस इसी बात पे है कि हम बच्चों को ओवर ईटिंग करने से कैसे रोक सकते हैं, ताकि आगे जाके जब वो एक यंग मैन बनेंगे, यंग वुमेन बनेंगी, तब उनके लाइफ में डिफिकल्टीज ना आए, ताकि वो अपने बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत आराम से अच्छे से निभा पाए, उसके ऊपर फोकस करें। तो गाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डू नॉट गिव दिस एक्सपेक्टेशन ऑल द टाइम। हैव दैट फीलिंग ऑफ हंगर इन देयर बेली। हाँ, उनको भूख लगने दो, भूख लगे बिना ही 3 घंटे में खाना उनको खिलाना है, दैट इज वेरी रॉन्ग। तो उसको कभी वही लगेगा ही जाके नहीं वही ना। होता है ना, आगे जाके भी 2-2 घंटे में लोग खा रहे हैं, और आप वही सेम पेरेंट आगे जाके वही सेम किड्स के साथ कितना मोटा हो चुका है। मेरी बेटी तो मोटी हो चुकी है। यू नो दिस डिरोगेटरी सेंटेंसेस आप यूज कर, बट वो तुमने सीखा कहाँ से, वेयर दे हैव लर्न, यू नो। Yeah. So So Soumya, there's we a have question. one, yeah, Yeah. that Sachdeva ji ka hai. Sachdeva. Yeah. 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 So there's a question that your child, maybe the ma'am, sometimes they just do when they don't like that particular vegetable. So here, Soumya, I would like to discuss one particular thing with us. So there was a child in Japan. There was a एक पार्टी हुआ था जिसमें छोटे छोटे बच्चे गए थे। तो उन बच्चों के आगे ना, इवन इंस्टाग्राम पे भी ना एक बहुत अच्छा सा वीडियो आया था, इट वाज सो क्यूट। बच्चे आगे ब्रोकली और ये सब कुछ रखा गया, चिप्स रखे गए, चॉकलेट रखे गए। तो वो जापानीज बच्चे ने ना ब्रोकली को उठाया, because he has seen his parents like that. Yeah. From the beginning, their parents have taught them that beta, prefer vegetable over all these packed food items. But do you think your child is not going to do that? If you had taught him like this and before, तब उस आपके बच्चे ने भी वैसे आज वही चीज चूज किया होता, शायद वो वेजिटेबल ब्रोकली, शायद वो पालक की सब्जी। आप ये देखो, अगर आप लोगों को याद हो, पॉपाई के नाम से एक कार्टून आता था, सौम्या, इफ यू रिमेम्बर। Yeah. तो द पॉपाई यूज्ड टू ईट Spinach. स्पिनच, पालक खाता था, या पॉपाई द सेलर मैन। Yeah. तो बच्चे वो पॉपाई को देख देख कर पालक खाना सीखे। तो अब Spinach आपको बोलते देखना है थे। स्पिनच। या I used to say, मम्मी spinach चाहिए, spinach चाहिए। हाँ. absolutely, this is how we create curiosity among the kids. डू नॉट शो देम द पैकेट। आप तरह तरह के डिशेस उनको बना, अपना खाली अपना किचन का टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट नहीं ढूंढने हैं फ्रेंड्स, आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। आप भी अपने इंस्टाग्राम की स्क्रोलिंग को थोड़ा सा कम करके, मे बी यू कैन कुक दैट स्पिनच इन अ डिफरेंट फॉर्म एंड सर्व देम। दे विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई ओनली कि क्या है वो। So guys, this is very important. Yeah, I hope that Sachdeva K, you got your answer. So you have to identify that. And now अगर आप बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, अब भी अगर आप उनको समझाओगे और कोशिशें क्रिएट करोगे, and you change your habits. Whenever you are celebrating something, you do not order a Zomato करके या Swiggy करके पिज्जा ऑर्डर करने के बजाय you celebrate on the home cooked food. आप सोचो कि पार्टी करेंगे, लेकिन पार्टी में सारी की सारी चीजें हमारे घर में खुद बनेंगी, हम खुद बनाएंगे उसको। फिर देखो आपका बच्चा कैसे वहां से ग्रैब करता है। गाइस, किड्स आर लर्निंग फ्रॉम ओनली अस। वी हैव टू फॉलो दैट बिफोर टीचिंग देम। या यस। और एक बात, जिस तरह की हाइप हम प्रोसेस्ड फूड यानी कि चिप्स हो गया, चॉकलेट हो गया, जिस तरीके का हाइप हम क्रिएट करते हैं ना उन चीजों के, वैसे ही हम वेजिटेबल्स की हाइप नहीं क्रिएट करते हैं।
क्या आपने ऐसे किया, माय गॉड ब्रोकली खाएंगे, ब्रोकली खाएंगे, रोना बंद कर, मैं तेरे को ब्रोकली दूंगी। कोई किया है ये? नहीं। कोई बोला है तू रोना बंद कर, मैं तेरे को एप्पल दूंगी? नहीं। हम क्या करते हैं, वो चीजों को हाइप करते हैं क्योंकि वो बहुत बहुत रेयर में खाते हैं, इसीलिए हम इसको लगता है कि हाइप करना है इस चीज को। आप हाइप करो, जो आप खा रहे हो ना उस चीज को हाइप करो। आप अभी आप पेरेंट्स पेरेंट्स खड़े हो ना, कोई बोल रहा है अरे मेरे बच्चे को ना चिप्स ही चाहिए, मेरे बच्चे को वो ही चाहिए, आप अपना बच्चे के बारे में हाइप करो, अरे मेरे बच्चे को ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही खाना अच्छा लगता है, he loves fruits and we learned it, I and Supriya have learned it from a very great personality that बच्चों को नए चीजों से प्यार नहीं होता है, they are averse to new things। आपको चॉकलेट भी the first time you give a chocolate to the kid ऐसे ही किया है उसने, Absolutely. My kid, I've seen it by my kid also. इससे खड़वाहट सी मुंह बनाया होगा उसने, बट हम नाइस 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 ऐसे कर करके उनको सिखाया है कि दैट इज हाउ दे हैव टू परसीव दैट चॉकलेट, तभी जाके उन्होंने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो प्लीज आप अपने एंड ऑफ कोर्स आपके प्लेट में आप जिस ढंग से आप अपना खाना खा रहे हो ना उसी ढंग से वो आपके बच्चे खाएंगे। आई रिमेम्बर कि मेरी मम्मी ब्रिंजॉल नहीं खाते थे and I used to see her doing that, and there was a phase when I did not eat brinjal because I picked it up from her, and एक टाइम भी आएगा जब स्लोली बच्चे आउटग्रो करके खाने भी लग जाएंगे। तो आपको थोड़ा इजी होना चाहिए अपने बच्चों पे, फोर्स करो उनको, पुश करो ट्राई करने के लिए। अगर नहीं बोल रहे तो इट्स ओके, इफ द बॉडी नीड्स दैट न्यूट्रिएंट इट विल डेफिनेटली टेक दैट न्यूट्रिएंट। आपका बॉडी आपका माइंड बहुत शार्प है, जस्ट उसको एक सेफ स्पेस दो। बिल्कुल। तो ये सचदेवा जी ये भी बोल रहे हैं कि उनके बच्चा जो है स्कूल में जाता है ना, स्कूल में जाकर पीयर्स को देखने के बाद उनको ये चीजें कहते हैं, अदरवाइज तो मेरे घर में पार्टीज में हम लोग होम कुक्ड ही प्रेफर करते हैं। दिस इज सो गुड एक्चुअली, दिस इज वेरी गुड। हाँ, फिर बच्चों को ना आप अगेन 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 मैं सचदेवा जी आपको वही एग्जाम्पल देना चाहूंगी। सो दैट यूरोप वाला बच्चा जो है वो जापान में आया हुआ था उस चीज के लिए, एंड उसने वहां पर देखा आके कि मतलब kids were offering them go chips and chocolates and all, so that child started crying and mom I want broccoli. So again that example comes here. So they have taught their kids like that, even if they go out they will look for that food only. That's what Soumya said कि बच्चों को ना उसी चीज के अटैच्ड हो जाते हैं, उस चीज की आदत हो जाती है कि if they are served vegetable with love they will have that vegetable again. मेरे बच्चे बहुत बड़े होके उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू किया, उनको पहले कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट ही नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि हमने दिया ही नहीं था, हमने टेस्ट करवाया ही नहीं था। तो जिस चीज की टेस्ट नहीं ऐसे करते थे या आप भी जब आप स्मार्टफोन यूज करने से पहले आपने बोला था ना, नहीं नहीं मुझको नहीं यूज करना, मेरे को नहीं आता है। एफर्टेड इट, व्हेन यू पुट एफर्ट इनटू इट, तब जाके आपने बोला अभी हाँ मुझे, अभी आपको स्मार्टफोन के बजाय अभी आपको नोकिया फोन देंगे ना, आप नहीं यूज करोगे, है ना, आप स्मार्टफोन ही लगेगा आपको। जब जिस चीज की आस नहीं लगती है वो तब तक नहीं होता है। पिज्जा इज अ फेवरेट बिकॉज हमने वो हाइप क्रिएट किया है, लाइक नॉट जस्ट अस एज अ पेरेंट, सराउंडिंग में बहुत हाइप है इस चीज की। मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि आई कम फ्रॉम अ विलेज, मैं विलेज से आती हूँ, तो मेरे पापा मम्मी मुझे विलेज लेके जाते थे मेरे छुट्टियों के वेकेशंस के टाइम पे, मुझे छुट्टियों पे लेके जाते थे। तो वहां पे मैंने देखा है कि वो किड्स जो वहां पे ग्रो हुए हैं ना, व्हेन वी टेक देम आउट फॉर फूड आउटसाइड, वो उतना अप्रिशिएट नहीं करते थे वो खाने को। लाइक वी यूज्ड टू टेक देम आउट फॉर डिनर एंड ऑल, बिकॉज हम नए गए थे ना, तो हम लेके जाते थे मेरे कजिन्स को, हम लेके वो ऐसे मुंह बना के खाते थे, ये नान है, ये इसे इतना क्यों ऐसा है, पनीर क्यों ऐसा ऐसा चिपकू चिपकू है, like they used to make this weird faces and we used to be like what, this is so yum, ठीक है। और वो घर आके ना वही जवार रोटी और दाल खा के इतना खुश हो जाते थे, वो बोलते थे ये देख भाई ये असली खाना है। So it is how we hype these things, and now I see the same cousins who have moved to city and they love the same food.
So it is all about how you are building in your environment. Soumya, when I was a kid, I will share this small incident and then we log off. When I was a kid ना, I did not know what a pizza is. I was maybe fifth, sixth standard में थी, तो हम लोगों को पता नहीं था कि पिज्जा होता क्या. But I was a fan of Madhuri Dixit. So once I was reading her confession, she said that कि pizza is my favorite food. Yeah. From there I picked कि पिज्जा होता क्या है भाई, मुझे भी खाना है. माधुरी का फेवरेट है तो मुझे भी खाना है. सो वी आर पिकिंग फ्रॉम देयर ऑल्सो सचदेवा जी. फिर आसपास के एनवायरमेंट में क्या हो रहा है, किस हीरोइन को हम लोग फॉलो करते हैं, किस हमने सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं, तो ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो क्रिएटिंग हाइप इन आवर माइंड्स. So yes, so this is That's very why important for us to, advertisement, yeah. food industry hires celebrities. That's why they hire your idols. आपको लगता है अरे विराट कोहली टॉम यम चिप्स खाता है तो मैं भी खाऊंगी, बट वो लोग नहीं खाते हैं. They don't. They just They're just endorse it. branding. They Yeah. just endorse it. Now that's why these days celebrities are becoming very conscious of what they are endorsing also. If you see, they are putting effort into knowing what that company does, how ethical they are, how sustainable they are, and then they are supporting those brands and really standing up, giving a high five to all these celebrities who are putting this conscious effort to making this whole planet healthy by they know that. Like रोनाल्डो ने एक मूव किया था, आपने देखा था, ये तो हिस्ट्री क्रिएट किया था. रोनाल्डो Absolutely. स्पीच देने आया था और उसके सामने कोक का बॉटल रखा था, ठीक है. ही जस्ट डिड वन मूव. he took the coke bottle, he kept it aside and he put Bisleri का पानी, and the shares of Coca-Cola went down like crazy after that one move. So you should be, see, at the end of the day, your kids, for your kids you are the idol. हमारे लिए हमारे पेरेंट्स ही आइडियल है, क्योंकि दे कम क्लोज टू अस, दे आर होम. तो आप अगर आप रिपीटेडली चूज करोगे, आप रिपीटेडली आप 10 बार बोलो पिज्जा से ना मेरा पेट दुखता है, मेरे को नहीं खाना है, या वट एवर रीजन यू गिव, यू सी ऑन द 11th टाइम योर किड विल से ममा रहने दो, कुछ और ऑर्डर करते हैं, आपको पेट में दर्द होता है ना. इफ ही डजंट से दिस, यू कॉन्टैक्ट अस and we will take care of your kid. That's for sure. Yeah. Thank you so much, guys, for such a lovely, meetup. And it is so amazing that you guys are so, you're asking questions, and we are so blessed to have you here So amongst blessed. us. Thank you so much. Thank you to all those who are seeing this screen, seeing this video afterwards. We just love you guys. Please come up with your queries, and you can DM us for further queries also. Hey, Soumya, you would like to add something? Yes, so we are educating you all guys from this family perspective. So it only takes one person to change the whole family. So this family habits, it's not just pertaining to your kid. आपके kid का ही habit नहीं है, ये आपका सब लोगों का जो घर में है, ये सभी लोगों का combined effort है, जो एक habit है. तो आपको एक एक करके आप सभी लोगों को heal होना है. Start with yourself and everybody will follow. We have seen great changes with our clients. हम एक पर्सन ने चेंज स्टार्ट किया है, अपने आप लोग देख के चेंज हो रहे हैं. सो बिल्डिंग अ फैमिली हैबिट इज अ वन प्रोसेस, लाइक वन मैन प्रोसेस. आप अकेले से स्टार्ट होगा, बट आपका फैमिली चेंज होगा, आपका फैमिली चेंज हो रहा है तो आपका सोसाइटी चेंज होगा, आपका सोसाइटी चेंज हो रहा है, आपका नेबरहुड, आपका नेबरहुड से सिटी, सिटी से नेशन, नेशन से पूरा वर्ल्ड. सो इट विल ऑल स्टार्ट विथ यू एंड वी एनकरेज यू to pick up these new parenting styles which will give your kids the right tools, and also you to you as well. So we welcome you all at Brain to Body Revolution. We have lot of such tricks, we have lot of such tools in a practical manner to implement in your life, and we'll be happy as a transformist, as a nutritionist, me, and as a holistic performance and a prosperity coach, Supriya. We are here to help you and hold your hands in the long run. Come join us whenever you can. So, Soumya, there's a query that morning drink for weight loss, please. She's asking for that. Garam garam pani. A tall glass of water is all you need early morning in the drink to you start losing your weight. Your body needs more water than food to lose weight. Just drink water. हवा खाओ, पानी पियो. इस बात का याद रखो. हवा खाओ, पानी पियो, and everything will be sorted. Yes.
DM us for more, yeah? If you want, really, you just DM us for more. We will definitely give you guidelines about that, and you may join us with our programs, lovely programs, and see massive weight loss within a short period of time, and that is going to stay with you forever and ever. You will not be going back to the previous weight. You will be sticking yourself to the weight that you desire for. So just work on your mind, and you'll get your body transformed like anything. Thank you, guys. Thank you so much. We'll see you in the next Instagram live. We are coming up with the same series of parenting style, how to improve your family health and everything. Because जब आपके साथ पूरा family आ जाता है ना, आपको भी transformation करने में अच्छा लगेगा. So Our with guru that, always says now, Soumya, that one is the mother of 10,000. So Yeah. yes, you bring the revolution in yourself, your family will be transformed just like that. yes, definitely, 100%. Thank you, guys. Thank you so much. Take care, and we will see you. Bye. Bye-bye. Take care, all of you.